ਐਬ ਨ ਮਾਣੀ ਦੇ ਕਾਜ ਓ ਯਾਰ, ਐਬ ਨ ਮਾਣੀ ਦੇ ਕਾਜ ਓ ਯਾਰ। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स। दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर्स 13 मई ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮਦਾਨ ਲਏ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਲ ਤੇ ਦਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਿਆਲ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਦੇ कोई शक्ल बना देता है, कदे कोई। अगला सवाल एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी मैंने कौन सा गुनाह किया है जो बचपन से झेलती आ रही हूँ। तो बाबा जी ने इसके आंसर में फरमाया कि बेटा कर्मों का हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि किए भी हमने ही हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कर्म आपने किए हैं और भोगना नहीं पड़ेगा। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ना। अगला सवाल, बाबा जी मन बहुत उलझन विच पा दिंदा है, इनू परमार्थ वाल किवें लियाईए। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗੂਗਾ, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। अगला सवाल उसी ने पूछा कि बाबा जी जिनको नामदान की पर्ची मिल जाती है और उन्हें नामदान के टाइम निकाल दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, तो क्या ये भी उनके कर्म है। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਲੇ ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਂਦੇ। बेटा समय लगूगा, सब ठीक होगा। अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी मेरे को सब बहुत बुरा बोलते हैं, बुरा भला, और मेरे से हटने भी लग जाते हैं और मैं उन्हें आगे से जवाब नहीं देती। तो मेरे मम्मी पापा और दोस्त बोलते हैं कि तू अपना स्टैंड क्यों नहीं लेती। तो इस पे बाबा जी ने फरमाया, बेटा अगर एक ऐसा बन गया और हमने उसको आगे से जवाब दे दिया तो हमारे और उसके बीच में अंतर क्या रहेगा। हमें क्या लेना है उससे लड़कर और झगड़कर, आप बस चुप रहें और वहाँ से चले जाएं। अगला सवाल उसी लड़की ने किया कि बाबा जी मेरी सहेली, मेरी दोस्त आपकी नकल करती है। तो बाबा जी ने कहा, जी सत्कर करने दो, मैं तो चाहता हूँ कि ये गद्दी भी छोड़ दूँ। और संगत इस पर बहुत हंसी। अगला क्वेश्चन, किसी ने भोटा सेंटर आने में कहा और वहाँ आकर सत्संग फरमाने को कहा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा कितना और, मैं कितना और बोल लिया, आप सवाल कर रहे हो मैं बोल रहा हूँ, और कितने सत्संग कर दिए। जब आप अमल ही नहीं करोगे तो मेरे बोलने का क्या फ़ायदा। आप अमल ही नहीं करते, अब तो आपको अमल करना चाहिए और मुझे यहाँ बैठकर देखना चाहिए। अगला सवाल, अब्बा जी संगत को बहुत बड़ा भ्रम है कि वो कहीं और जाकर ठीक हो जाएंगे, क्या ये सही है। बेटा कर्म ਤੁਹਾਡੇ कोई लै नहीं सकता, मिलूगा अपनी करनी ਦਾ मिलूगा। मालिक ने जो देना सी देता, कर्मां ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਵੀ नहीं ख़त्म कर सकता, चाहे वो किड्डा भी ਵੱਡਾ बाबा क्यों ना होवे। इंसान सिर्फ अपनी कमज़ोरी लेके जाता है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्बा जी जो लोग छोटे कीड़े मकोड़ों को मारते हैं क्या वो सही है। बेटा अगर तो कोई मजबूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझकर कभी ना मारें इनको, क्योंकि मालिक ने जन्म दिया है तो किसी कारणवश दिया है।
अगला सवाल, बाबा जी हम अपने मन को फोकस कैसे करें? बाबा जी ने कहा भजन सिमरन के ज़रिए। बाबा जी पिछले जन्मों के कर्मों का कुछ लेना देना होता है? बाबा जी ने कहा जी हाँ, उन्हीं कर्मों की वजह से हमें ये जन्म मिला है और इसी जन्म में हमने ये कर्म खत्म करके उस मालिक में समाना है। अगला सवाल, बाबा जी जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है और कुछ लोग कहने लगते हैं कि इसकी मृत्यु तो जादू टोने से हुई है, क्या वो सही होता है? बेटा, इंसान अपनी कमज़ोरी दिखाता है। अगर ये स्ट्रांग होगा तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी कमज़ोरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी ज़्यादा सोचना अच्छा है या गलत है? बाबा जी ने कहा बेटा सोचना तो अच्छा है, लेकिन इतना भी ना सोचें कि दिमाग के ऊपर बोझ आ जाए। सोचें लेकिन इतना ज़्यादा ना सोचें। फिर एक लड़की ने लास्ट सवाल पूछा कि बाबा जी मेरे परिवार में से सारे आते हैं, लेकिन जो मेरे पापा हैं वो नहीं आते, तो उन्हें मैं कैसे लेकर आऊँ? बाबा जी ने इस पे कहा कि उनको आप रस्सी से बांध कर ले आओ। और बाबा जी ने बड़े महाराज के समय की एक बात बताई कि बड़े महाराज जी के समय में एक बहन होती थी। उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मेरे पति यहाँ पर नहीं आते, मैं उन्हें कैसे लेकर आऊँ? तो बड़े महाराज जी ने कहा आप रस्सी से बांध कर ले आओ। तो वो बहन ने अपने पति को रस्सी से बांधा और बांध कर ले आई। और फिर बड़े महाराज जी ने जब देखा तो उन्होंने कहा अरे ये क्या कर दिया? आप खलोया हर काम करावण आया राम। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 13 ਮਈ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया संता के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम। हर काम करावण आया